So in the divide and conquer approach, the logic is divide the main, rather than solving the main problem individually or at once, just divide that problem into a number of smaller problems. Like we are having a problem of size n, so we have just divided that into two problems of n by 2, n by 2. Now, after dividing the problem, this and the sub problem, just solve the sub problems recursively. Means find out the solution to the sub problem. And after getting the solution, so if we simply combine the solution, then we will get the solution for the main problem. Solution 1, solution 2 इनको combine किया, then हमारे पास क्या में आ गया solution to the original problem. So this one is the original problem. Okay. So the most well-known algorithm design strategy, like we divide a problem of instance size n into b sub-problem, each of size n by b, solve these sub-problem recursively, and after solving them, combine the solution to this sub-problem to obtain a solution to the larger problem. So this is the approach of the divide and conquer paradigm. Now, we will take one example on this, like analysis of the merge sort algorithm. So in this, this is the divide and conquer approach, like an algorithm which is based on the divide and conquer approach. There will be three stages. Maybe it is not sure like there will be three stages because the merge sort is based on the divide and conquer approach, but the merge sort or in the suppose and the quick sort, in the merge sort there will be three stages: divide, conquer and combine. But in the quick sort this stage will not be there, because जब हम इसको sort करते हैं, जो logic apply करते हैं, तो automatically the element of each and every element of that list is already in that proper place or in the sorted order. But यहाँ पे in the case of merge sort we need to use this step also. So in the divide stage, express problem in terms of several smaller sub-problems. Then in the conquer stage, solve the smaller sub-problem by applying solution recursively on the smallest sub-problem, and recursively, and the smallest sub-problem may be solved directly. अब ये smallest sub-problem कैसे directly solve होंगे? Because when we are dividing that, and at the end, in the ith iteration or जो भी iteration हुआ, we will reach in a situation where the problem size will be 1. तो जैसे हम sorting कर रहे हैं और division करते जा रहे हैं list का half 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 में, लास्ट में हमारे पास एक ही एलिमेंट बचेगा, तो जो एक एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे होगा. ठीक है. So this is the conquer, means conquering or solving the smaller sub problems recursively, and in the last stage, in the combined stage, just construct the solution to the original problem from the solutions of the smaller sub problem. जो भी हमारे smaller sub problems हैं उनके solution को combine करके हम क्या मिल जाएगा हमको, solution to the main problem. Okay, so now let's take a look how this divide and conquer approach will be applied to the merge sort strategy. So in the case of merge sort, the divide stage split the n element sequence into two subsequences of n by 2. जो भी हम animation है, like we are having initially an unsorted array of size n, then we simply divide it into half. तो half 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 में divide होता जाएगा. कब तक divide होगा? जब तक कि we will reach to a position that it will be in an undivisible form. मीन्स उसके बाद वो कौन सी हो गई? दे विल बी सिंगल एलिमेंट. अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते. देन फिर हम ये तो टॉप डाउन आए, देन वी विल गो फॉर बॉटम अप. मीन सिंपली कंबाइन दिस एंड गो टू द सॉल्यूशन टू द मेन प्रॉब्लम. ठीक है. सो split the n element sequence into two subsequences of n by 2 elements each. Then in the conquer stage, recursively sort the two subsequences. Like we simply apply the merge sort algorithm there and will provide this value. So ये कब तक वर्क करेगा? जब तक कि हम हमारी प्रॉब्लम n की फॉर्म में है, और जब प्रॉब्लम साइज 1 हो जाएगा then this will not work there. Okay, so we simply giving the input and we simply sort these sub problems by using the merge sort procedure. So after that the merge sort procedure we will get the solution, and in the combine stage, merge the two sorted subsequences into one sorted sequence for the solution of this problem. Like this merge, this is the merge procedure, and we will get the sorted subsequence. So this is the methodology or approach for the merge sort algorithm. Okay.
like we can understand it from here. We are having this array. Okay, so पहले क्या करना है, इसको हाफ में डिवाइड करना है. अच्छा, इसमें क्या किया है, देखो मैं इसको शो कर देता हूँ. 7294 will come here, 3861 will come here, 3861. देन 7294 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा. 72 will come here और 94 will come here. Then 7 will come here, 294. Same here, 3861 and 3861. ठीक है, तो ये डिवीजन हुआ. और जब हम, ये लास्ट स्टेज है हमारा. इन दिस स्टेज नाउ वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड द लिस्ट बिकॉज इट इज इन द बेसिकली अनडिविजिबल फॉर्म. तो अब क्या करेंगे, वी सिंपली परफॉर्म द कॉनकॉर ऑपरेशन. तो हमें बेस केस में सॉल्यूशन पता है, तो ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट, इसका एक ही एलिमेंट, तो ऑब्वियस ही बात है सॉर्टेड होगा. तो देन वी विल गो फॉर द कंबाइन ऑपरेशन. तो इन द कंबाइन ऑपरेशन क्या होगा, जस्ट टेक टू सब प्रॉब्लम and merge them. Just take two sub problem and merge them. So here we are having 7 and 2 और इसको merge करेंगे. तो merge procedure क्या करेगा, इनको sorted way में merge करेगा. Like this is 7 and 2, so 2 will come here, then 7 will come there. In this case 4 will come here, then 9 will come there. In this case 3 will come here, then 8 will be there. In this case 1 and 6. अच्छा, ये मर्ज हुआ. नाउ वी आर हैविंग 27, 49, 38, 16. नाउ मर्ज देम. तो वी विल गेट हियर 2 फ्रॉम हियर, 4 फ्रॉम हियर, 7 फ्रॉम हियर और 9 फ्रॉम हियर. सेम लाइक दिस. इट इज 1 6, so 1 फ्रॉम हियर, 3 फ्रॉम हियर, 6 फ्रॉम हियर और 8 फ्रॉम हियर. नाउ अगेन वी आर हैविंग दीज टू लिस्ट, सो मर्ज देम. सो 1 आएगा यहाँ से, 2 लेफ्ट साइड से, 3 राइट से, 4 लेफ्ट से, 6 राइट से, 7 लेफ्ट से, 8 राइट से और 9 लेफ्ट से, लाइक दिस. तो नाउ वी आर हैविंग द फाइनली sorted array. So this is the process of dividing and merging in this merge set algorithm. So now we will understand it by the algorithm of this. अच्छा देखो, ये इस तरह से है. ये डिवाइड हुआ, ये यहाँ पर फुल डिवाइड हो गया. देन वी विल डू कंबाइन. 9 4 यहाँ आया था, ये कंबाइन. इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आ जाएगा ये कंबाइन. सेम ऐसे ही राइट साइड में आएगा एंड इन दोनों को कंबाइन करेंगे, विल गेट सॉल्यूशन. दिस इज द मर्ज प्रोसीजर. ओके, सो दिस इज द बेसिकली मर्ज प्रोसीजर. इससे पहले आई एम जस्ट शो यू, विल जस्ट शो यू द मेन एल्गोरिथम दैट वेयर द मर्ज इज बेसिकली we are using. This is the main algorithm. So this is a merge sort algorithm. In this algorithm we are passing the name of the array and the lower and upper bound of the array, means 0 or this is the first 0 or n minus 1 like this. तो ये algorithm है, recursive algorithm है. Here we are just checking for the base case. If p less than r, तो अगर p less than r है, mean there are some elements in the list. Okay, so in that case this will be called, otherwise that will be the base case. Okay, so if p less than r, then it is checking for the base case, and if p less than r, then हम क्या करेंगे, simply find out the middle element, middle location of the list. हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे उसको. कैसे डिवाइड किया है हमने, उसको कॉल किया मर्ज सॉर्ट, इसी प्रोसेस को रिकर्सिवली फर्स्ट हाफ लिस्ट के लिए, सेकंड हाफ लिस्ट के लिए. और जब ये इसके लिए कॉल होगा, फिर ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कॉल होता चला जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज द मर्ज प्रोसीजर जो अभी हमने, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, लेट्स गो टू द मर्ज प्रोसीजर. दिस वन इज द मर्ज प्रोसीजर. हियर वी आर हैविंग द नेम ऑफ द एरे एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड द मिडिल लोकेशन. तो इसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर नथिंग बट सिंपली creating two temporary list here for the sorting purpose. So this is the size of the first left list, this is the size of the second list. Okay, and we will use these two arrays here for a temporary purpose, for some kind of temporary calculation in this. Then we are just copying the first array in li, second l and second array in rj. These are some sentinel values for logical purpose. जैसे linked list में या लिंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट होता है जो नल वैल्यू होती है. ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिंग में लास्ट एलिमेंट होता है. तो फॉर परफॉर्मिंग द लॉजिक ऑपरेशन, जैसे एक लिस्ट ओवर होगी, तो दैट फॉर चेकिंग दैट द वन लिस्ट, दैट पर्टिकुलर लिस्ट इज ओवर. ओके,
एंड दीज आर टू लूप कंट्रोल वेरिएबल्स। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली डूइंग द मर्जिंग ऑपरेशन। अब ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अलग स्लाइड पे कि ये वर्क कैसे कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, the combined sorted it combines the sorted sub arrays AP2Q and AQ plus 1 to R, और ये फाइनली हमको दे देगा AP2R। तो ये है हमारा मर्ज प्रोसीजर। इट मेक यूज ऑफ टू वर्किंग एरेज L और R, इन दोनों का यहाँ यूज कर रहा है फॉर होल्डिंग द कॉपीज ऑफ द टू सब एरेज। एंड इट मेक यूज ऑफ द सेंट्रल वैल्यू, ये मैंने बता दिया किस पर्पज से यूज आएंगी। जैसे क्या होता है, वी आर हैविंग टू अरे, तो हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स को और थर्ड अरे में कॉपी करते जा रहे हैं। जैसे भी इट मे बी पॉसिबल है कोई एक अरे पहले एंड हो गया, तो ये मालूम कैसे पड़ेगा, इट विल बी बाय दिस सेंटिनल वैल्यू। तो जैसे ही सेंटिनल वैल्यू आएगी वो अरे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरे अरे के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम डायरेक्टली इसमें पेस्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। नो जस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। देखो ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट होगी थीटा ऑफ 1। इसमें ये लूप चल रहा है, सपोज हमारा जो मेन साइज था वो n था, ये चल रहा है n/2 टाइम n/2 टाइम, तो टोटल चल रहा है n टाइम। या जिस भी बार में चल रहा है ये, तो पर कंट्रीब्यूशन हमें किस फॉर्म में चाहिए, n के टर्म में चाहिए। सो ये लूप है n के लिए, ये भी n के लिए, तो कॉस्ट होगी अप टू n। इसका कंट्रीब्यूशन चारों स्टेटमेंट्स का होगा थीटा ऑफ 1 और द कॉस्ट। और यहाँ पर वी आर एग्जीक्यूटिंग इट फॉर k इक्वल p2r मीन्स n टाइम, ओके। सो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा n, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 2n+2। तो इसका हमारे पास टोटल मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर का जो कॉस्ट होगा इन द एल्गोरिथम विल बी थीटा ऑफ n, ठीक है। अभी कहाँ पे यूज आएगा आगे देखते हैं। तो ये मर्जिंग प्रोसीजर है, लेफ्ट सॉर्टेड अरे, सॉरी लेफ्ट अनसॉर्टेड अरे, राइट अनसॉर्टेड अरे, देन we simply merge and get the finally sorted array, mean sorted array। कैसे, जैसे हमारे पास इनपुट क्या होगा, array a and indices p q r such that p less than equal to less than r, एंड सब अरे हो गया ये और दूसरा हो गया ये, और इन दोनों को मर्ज करके क्या आउटपुट आ जाएगा, मेन अरे हमारे पास आ जाएगा जो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। मर्जिंग किस तरह से होगी, जैसे हम सपोज हमारे पास कार्ड्स हैं, ये दो हमारे पास फाइल्स हैं कार्ड्स की, तो इसमें से कार्ड लिया, एक इसमें से लिया, तो इनमें से जो छोटा है वो लेफ्ट में, जो बड़ा है वो राइट में। फिर एक और लिया, जो छोटा है वो लेफ्ट में, जो बड़ा है वो राइट में। नो 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 नो, ऐसे नहीं। पहले दोनों में से सपोज ये पहला कार्ड है, ये इसका पहला कार्ड है, दोनों को कंपेयर किया, जो स्मॉलर है वो यहाँ पे आ जाए। तो सपोज ये स्मॉलर है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम, नेक्स्ट कार्ड उठाएंगे यहाँ से। फिर इसको चेक किया, इसके पहले कार्ड, सपोज ये वाला स्मॉलर है, तो ये यहाँ पे आ गए और हम नेक्स्ट कार्ड पे आ गए, इस तरह से। अभी आपको एक मैं एनिमेशन दिखाता हूँ जिसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चूज द स्मॉलर ऑफ द टू टॉप कार्ड, रिमूव इट एंड प्लेस इट इन द आउटपुट फाइल, एंड रिपीट द प्रोसेस until one file is empty, and take the remaining input file and place it face down onto the output file। लाइक ये ऑपरेशन है इस तरह से। देखो ये हमारा रिजल्टेंट एरे होगा, तो इन दोनों में पहले i यहाँ पे है, j यहाँ पे है, 1 is less than 2, तो 1 will be here, j will be incremented, j यहाँ आ गया, k will be incremented, then 2 और 2 और 2, तो अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले का लो राइट का, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट तो फाइनल एरे में 2 ही आना है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी चेंज। नेक्स्ट टाइम में 2 आ गया, नेक्स्ट टाइम में देखो यहाँ पे था हमारे पास 3 और 4, तो 3 आ गया, अब आ जाएगा इसमें 4, ठीक है। अब 4 आ गया, इसके बाद हमारे पास बचे हैं 5, 7 और 6, अब आ जाएगा इसमें नेक्स्ट 5, फिर आ जाएगा 6, ये आ गया 6, और फिर आ जाएगा यहाँ से 7, एंड द लिस्ट इज ओवर, बोथ लिस्ट आर ओवर, एंड वी आर हैविंग दिस सॉर्टेड अरे। जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय दिस एनिमेशन, लाइक वी आर हैविंग दीज टू अरेज, लेफ्ट यहाँ पे आया, राइट यहाँ पे आया, डिवाइड किया हमने। अब मर्जिंग करेंगे इनकी, इसे मर्जिंग करेंगे, तो i इक्वल 0, j इक्वल 0, दोनों में स्मॉलर है ये वाला, देन दिस विल कम हियर, j इंक्रीज हो जाएगा, j आ गया यहाँ पे, k आ गया यहाँ पे, देन 2 एंड 4, मतलब जो एलिमेंट कॉपी नहीं हुआ उसका पॉइंटर वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 2 एंड 4, 2 इज लेसर, तो 2 विल कम हियर, ये पॉइंटर k यहाँ आ जाएगा और i इंक्रीज हो जाएगा, j यहीं रहेगा, इस तरह से, ठीक है। एंड 3 एंड 4, 3 यहाँ आ जाएगा, देन
इंक्रीज हो जाएंगे वैल्यू 4 ये एंड 7, तो 7 4 विल कम हियर, pointer will increase, 5 and 7 5 will come here, pointer will increase, 6 and 7 6 will come here and pointer increase। तो ये एंड हो गया, तो यहाँ पे हमारी सेंटिनल वैल्यू काम आती, ठीक है। एंड अब ये जो लिस्ट है ये सॉर्टेड फॉर्म में, तो एज इट इज इनको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, पहले 7 देन 8। तो दिस इज द वे ऑफ मर्ज प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिथम है रिकर्सिव। अब इसमें हम हर एक उसका स्टेप का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं रिकर्सिव फॉर्म में। हम बोलें कि यहाँ पे हम इसका रिकरेंस रिलेशन ड्रॉ करते हैं, क्या रिकरेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, ये हम सिंपल मिड एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे मिड लोकेशन, सो कॉस्ट विल बी कांस्टेंट थीटा ऑफ 1। ये हमारी प्रॉब्लम होगी Tn/2 साइज की, ये प्रॉब्लम होगी Tn/2 साइज की, और ये हमारा मर्ज प्रोसीजर है जिसकी हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी थीटा ऑफ n। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, टी ऑफ एन विल बी 2Tn/2 प्लस थीटा एन, ये तो रहेगा फॉर n ग्रेटर देन 1, मीन जब तक बेस केस नहीं पहुँचते, और जैसे ही बेस केस पहुँच जाएंगे तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी थीटा ऑफ 1। So this will be the recurrence relation for this Merz-Hut algorithm. Now we can solve this recurrence relation by ये recurrence relation आप कोई सा method apply करो आप, you can apply either Master theorem or recursion tree method for solving this. So let's suppose we are applying the recursion tree method. So initially Tn, then C Tn/2 Tn/2, then इसको और expand किया हमने, इसके बाद expand करने के बाद लाइक वी विल हैव द कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, प्रॉब्लम हमारा रेज हो रहा है n/2 i की फॉर्म में, तो i की वैल्यू log n आ जाएगी, cn 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 एट एवरी लेवल, बट अप टू विच लेवल, log n लेवल। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, c ऑफ n इंटू log n प्लस 1। जीरो लेवल को भी एज्यूम किया यहाँ पे प्लस 1 एज्यूम करके, तो c n इक्वल log n प्लस 1। बट दिस विद द क्या बोलते हैं dominating term or the highest order term as compared to this, so the complexity will be in this order, Tn is theta of n log n। तो